लेते हैं पहले तो. So Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now let's say this is the right angle triangle. So we have a right angle triangle ABC, right? अब जो इस वर्टेक्स A से जहां पे राइट एंगल है वहां पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं D करके, BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं D. अब इससे क्या है कि आप अगर BAC कंसीडर करोगे, ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A 90 डिग्री है. अगर हम इधर वाला छोटा ट्राइंगल, ये जो ADB वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे, A के करस्पॉन्डिंग D होगा और B तो कॉमन ही है, तो इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDA इज सिमिलर टू ट्राइंगल. फिर से BAC पे आते हैं. A 90 डिग्री है, ये D भी 90 डिग्री होगा और C के करस्पॉन्डिंग C होगा क्योंकि कॉमन है. इज सिमिलर टू ट्राइंगल. सो BAC है तो AC तो BC हो जाएगा AC के जगह. सो ADC हो जाएगा. Is it clear? Is it clear to everyone? तो ये Yes, sir. ट्राइंगल जो है ये आपस में सिमिलर होगा और बड़े ट्राइंगल से भी सिमिलर होगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और ये प्रूफ कैसे होता है? AA सिमिलैरिटी थ्योरम से होता है. तो अगर आप ये दोनों को अगर प्रूव करोगे, BAC और BDA को, तो ये देखो एंगल D जो है A के बराबर है और एंगल B जो है कॉमन है दोनों. AA सिमिलैरिटी थ्योरम से ये हो जाएगा. और इन दोनों को अगर हम करें फर्स्ट और थर्ड को, सो फर्स्ट और थर्ड को अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है कि ये जो एंगल D है, ये एंगल D एंगल A के बराबर हो गया और एंगल C कॉमन हो गया दोनों. तो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम ये दोनों भी सिमिलर हो जाएंगे. तो AA सिमिलैरिटी थ्योरम से ये छोटा वाला लेफ्ट साइड वाला और बड़ा ट्रायंगल, और AA सिमिलैरिटी थ्योरम से राइट साइड वाला और बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So इसका जो स्टेटमेंट है, so if a perpendicular is drawn from a right angle, from the vertex of a right angle triangle, है ना? So then that perpendicular divides the right angle triangle into two small triangles which are similar to each other and also similar to the bigger triangle. ठीक है? और इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं. ये थ्योरम है बेसिकली. इसका प्रूफ हम लोगों को इम्पोर्टेंट है, बट मतलब we can directly use this in doing certain questions as well. ठीक है बच्चों? So Yes, I got sir. disconnected. Could you please explain this part to me? Yeah. So what we are doing this theorem 6.7. So in your book, NCERT book, it is theorem 6.7, which states that if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right triangle, the hypotenuse right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. So if you are drawing a perpendicular from a right angle, vertex of the right angle triangle, right angle like that, A. So the line, the perpendicular, when dropped on a hypotenuse, it divides this triangle, bigger triangle, into two halves, which are similar to each other as well as the bigger triangle. So when I write triangle BAC, this is similar to triangle BBA. Why? Because A is equal to D and B is common between both the triangles. So by AA similarity theorem, first and second gets similar. And similarly, if you talk about this triangle BAC and angle ADC, so angle A is equal to angle D and angle C is common. So in that case, the first one and third one is similar to each other using that formula. Okay, sir. So all of these
both these smaller ones are similar to the bigger one. Thank you, sir. अब इसी को यूज करके हम लोग बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर लेते हैं. मैं बस बता दे रहा हूं, वैसे आएगा नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, बट स्टिल. So if you write this, similar part, the sides which are similar. So if you see this BAC and BDA, so you will have, see, BA by BD, BA upon BD. So BA upon BD is equal to BC upon BD. So this will give you BA square is BC into BD, first equation. उसके बाद इन दोनों को, फर्स्ट सेकंड को लिख लिया, फर्स्ट और थर्ड को अगर हम करेंगे तो यहाँ पे AC वाला चीज को साथ में लेके चलेंगे तो AC by DC, AC by DC, we are writing similar sides, the sides which are proportional here. So if we use these AC, then you will use DC here, and if you use AC here, you will use BC here. So is equal to BC upon AC. So this will give you AC square is equal to BC into BC. This is second equation, right? So this comes from triangle BAC similar to triangle ADC, and this one comes from triangle BAC similar to triangle BD. Right? So from first and second, we know that, see, AB square है और AC square, add कर दो उसको. So 1 plus 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा AB square plus AC square BC into BD. So BC into BD plus BC into DC. So this gives BC को common ले लो बाहर. So BD plus DC. So BD plus DC, BC हो जाता है. So ये BC into BC. So this is equal to BC square. So इससे हमारा आ जाएगा AB square plus of AC square is equal to BC square. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो गया. AB square plus AC square is equal to BC square. Clear है बच्चों? Yes, sir. देख लिया बच्चों? Yes. Now we'll do this example 13. So this is, we have this triangle ABC. Triangle is ABC. ABC, then we have L and M.
So BL and CM are medians of the triangle ABC. BL and CM are medians of the triangle ABC right angled at A. Prove that 4BL square plus CM square 4BL square plus CM square is equal to 5BC square. और ये BL क्या है? मीडियन है, मतलब ये साइड इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. So given angle A is 90 degree and BL and CM are medians. Is it clear, बच्चों? Yes, sir. अब देखिए, जब आप BL स्क्वायर लिखिएगा, LHS से लेके चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा लंबा है, तो इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है. 4 टाइम्स BL स्क्वायर, तो BL स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर. तो हम लोग इस ट्राइंगल BAL में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. ठीक है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर BL स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, ये यूज करिए, प्लस 4 टाइम्स CM स्क्वायर. तो ये जो CM है, दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. अब ये देखिए, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना है. 4 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस AL जो है, AL ये AC का हाफ है, तो 4 टाइम्स AC बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये जो AM है, ये AB का हाफ है बिकॉज M मीडियन, तो 4 टाइम्स AB बाई 2 का होल स्क्वायर. ये लिखते ही आपका जो है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. 4 टाइम्स AB स्क्वायर और ये 4 टाइम्स AB स्क्वायर बाय 4 हो गया. 4 टाइम्स AB स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AC स्क्वायर बाय 4. 4 टाइम्स AC स्क्वायर बाय 4. तो 4AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर 5AB स्क्वायर, 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 5AC स्क्वायर. So this is equal to 5 times AB square plus AC square. So AB square plus AC square is BC square. 5 times BC square, which is RHS. Clear है बच्चों? Yes. समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए सबने मिटा दे इसको.
Next is example 14. So O is any point inside the rectangle ABCD. So we have this rectangle ABCD, and O is any point inside the rectangle. A point, let's say O. Now prove that. इसको join कर दो. Given ABCD is a rectangle, we have to prove OB square plus OD square. OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. OB square plus OD square is OA square plus OC square. आप क्या करें, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. सो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC. So construction is draw PQ parallel to BC. And अब देखिए, जब हम लोग कोई भी LHS लेके अगर हम लोग चलते हैं, proof of this, you need to understand because PQ is parallel to BC, it will also be parallel to AD. This will form a right angle triangle on both these things. And also AP will be equal to DQ and BP is equal to CQ. Because opposite sides of a triangle, a rectangle are equal. So this also forms BCQP also forms a rectangle. Right? So since BCQP and PQDA are rectangles, so this will give you AP is equal to DQ and BP is equal to CQ. अब हमें कोई भी लेट्स से जो प्रूव करना है, LHS is equal to OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. जब OB स्क्वायर लिखोगे आप तो ये क्या आ जाएगा, OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. So this is equal to OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. जब लिखेंगे ये साइड तो अब ये ट्राइंगल ले लो, OD स्क्वायर इज OQ स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर. अब ये देखो आप, देखो DQ जो है ये AP के बराबर है, तो DQ को आप AP से रिप्लेस कर दो और उसके अलावा जो यहाँ पे OP और BP है, ये जो BP है वो CQ के बराबर है, इसको BP को हम लोग CQ के बराबर रिप्लेस कर देते हैं. तो OP स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर OQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. Since BP is equal to CQ and DQ is equal to BP. अब ये यहाँ पे हम लोग लगाते हैं. अब देखो OP स्क्वायर को आप क्या करो, बिकॉज अब
AP के बराबर हो गया, तो OP स्क्वायर और AP स्क्वायर को साथ में ले आएंगे और यहाँ जो CQ स्क्वायर और OQ स्क्वायर है इन दोनों को साथ में ले लेंगे। So Pythagoras theorem लगाएं अगर OP square plus AP square, you will get OA square plus or CQ square plus OQ square, you will get OC square. तो यही हमें प्रूव करना था, OA square plus OC square, which is clear to everyone? Yes. लिख लिया सबने? yes, अब दो और क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? yes, Now, थर्टीन क्वेश्चन अगर हम देखते हैं पहले, 13th question is D and E are points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right angle at C. So we have a right angle triangle, right angle at C. अब इसमें कह रहा है D and E are points on the sides CA and CB respectively. So यहाँ पे D हो गया एक पॉइंट, यहाँ पे E हो गया। On CA and CB respectively of any triangle ABC, right angle at C. Prove that AE square plus BD square. AE square plus BD square. So prove AE square plus of BD square is AB square plus DE square. अब देखो जब हम लोग AE स्क्वायर लिखेंगे, ये जो AE स्क्वायर लिखते हैं, LHS से स्टार्ट करते हैं, AE स्क्वायर प्लस ऑफ BD स्क्वायर, राइट? सो अब देखो ये जो AE स्क्वायर है, अगर हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ECA, तो AE स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर जो है, ये BD स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है? अब देखो सिंपल सा है, तुम C और CD को पेयर कर दो, C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर DE स्क्वायर दे देगा, और ये AC स्क्वायर और AC स्क्वायर को साथ में ले आएंगे। सॉरी, कुछ गलत नहीं है, ये BC स्क्वायर होगा ना, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। आप AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को साथ में ले लेंगे तो AB स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको अगर हम लोग अरेंज कर लें, AC स्क्वायर प्लस और BC स्क्वायर
is the plus of CE square plus CD square. तो ये देखिए AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर होता है, so this is AB स्क्वायर and CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये CE है ये CD है, CE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर is equal to B square. This is what we had to prove. Is it clear? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Now 14th and 15th question. 14th पहले करते हैं. D and E are points on the side CA and CD, respectively of a triangle ABC right angled at. Sorry. So the perpendiculars from A on side BC of triangle ABC So 14 color perpendicular from A on side BC of a triangle ABC. So यहाँ से perpendicular draw किए on side BC of triangle ABC. Intersects BC at D such that DB is equal to thrice of CD. So given AD is perpendicular to BC and DB is equal to thrice of CD. Prove that twice of AB square. So we have to prove twice of AB square is equal to twice of AC square plus of BC square. तो अब ये देखिए ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर में कर रहा है, तो आप इसको पहले AB स्क्वायर से अगर हम लोग स्टार्ट करें, सो प्रूफ ऑफ दिस so twice of AB square is equal to LHS is twice AB square. इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स AB स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर twice of AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. ठीक है, हम लोग को चाहिए AC और BC, तो BD को तो रहने देंगे, AC स्क्वायर को हम लोग लिख लेते हैं AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर को, so this is equal to twice of AD स्क्वायर प्लस twice of BD स्क्वायर.
So अब जो ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर है, AD स्क्वायर को AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर लिख लेते हैं. AD square can be written as AC square minus CD square. ये पाइथागोरस थ्योरम ABC वाले ट्रायंगल में लगा है. AD square will be, ये perpendicular square will be hypotenuse square minus base square. So that's what we are doing here. So AD square को हमने ये लिख लिया और twice of BD square जो है, BD क्या है हमारा, thrice of CD है, तो यहाँ पे रिप्लेस कर लो. Right? So this becomes twice of AC square minus 2 times CD square plus 9 2s are 18 times CD square. So this is 2 AC square. 18 minus 2 is 16 CD square. अब देखो ये क्या है, इसको ये जो है 3 पार्ट्स है इसका, ये x है तो ये 3x है, तो टोटल BC क्या हो जाएगा. So this is ये x है, ये 3x है, टोटल BC 4x हो गया. तो 4CD means twice of AC square, 4CD का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 16 को, राइट. तो मतलब twice of AC square plus, so this is 2 times AC square plus 4CD is same as BC, so this plus BC square. Since BC is 4 times CD. क्लियर है सभी को. ये देखो CD का BD जो था थ्राइस था, तो अगर CD x है तो ये 3x है इधर से इधर. तो अगर टोटल इसको BC को देखो तो x प्लस 3x ये कितना हो गया, 4x हो, है ना. क्लियर है. क्लियर है बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने. Yes, sir. Fifteenth question. So in an equilateral triangle ABC, so we have an equilateral triangle ABC. So in an equilateral triangle ABC, D is the point on the side BC, such that BD is 1/3 of BC. So D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Given ABC is equilateral triangle. अब आपको प्रूव करना है, prove that 9AD square is equal to 7AB square. So prove 9AD square is equal to 7AB square. बहुत सारे एग्जामिनर का ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत बारी आया हुआ है क्वेश्चन और आगे भी आता रहेगा. सो 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर है. आप क्या करो, यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. लेट्स से ये पॉइंट E हो गया, ठीक है. अब
हमें पता है कि ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। मान लीजिए ये सारे जो हैं इज इक्वल टू एक्स, ये थोड़ा आसान बनाने के लिए। ना देखो हम लोग एलएचएस से अगर चलते हैं, 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर। अब ए डी ये है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल को सबसे पहले पकड़ते हैं। इन ट्राइंगल ए डी विल हैव 9 टाइम्स ए डी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बी डी 1/3 ऑफ बी सी है और बी क्या है, हाफ ऑफ बी सी। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, DE इज इक्वल टू BE माइनस BD। BE है BC बाई 2 और BD है BC बाई 3। क्लियर बच्चों? अब इनमें अगर एलसीएम ले लेते हैं 6, so 3BC माइनस 2BC, so BC बाई 6 हो जाएगा। सो अब DE पता चल गया BC बाई 6। अब हम लोग को चाहिए AE। जो AE है, AE को हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। So 9 times AE square can be written as AB square minus BE square, Pythagoras theorem से। और DE को हम लोग लिख सकते हैं BC by 6 का होल स्क्वायर। So this is 9 times AB square minus BE क्या होता है, BC by 2 है, BC by 2 का होल स्क्वायर प्लस BC by 6 का होल स्क्वायर। अब AB BC AC ये तीनों बराबर है, राइट। तो बिकॉज हम लोग को AB स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, BC को AB से रिप्लेस कर ले। सो 9 टाइम्स AB स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/4 प्लस, है ना, BC स्क्वायर बाय 4 था तो 1/4 और 1/36। सो दिस इज 9 टाइम्स AB स्क्वायर। एलसीएम हो गया 36, 36 माइनस 9 प्लस ऑफ 1। So this is 9 times AB square into 28 by 36, 4 times, 7 times, 7 times AB square। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों?
लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. So the questions which I have, done while revision, those are all important questions which has high probability of coming in exams. है ना, in any of the exams, स्कूल में हो चाहे जहाँ भी होगा, ये सारे questions बहुत commonly asked questions है. टीचर्स का फेवरेट होता है इस बार. कॉन्सेप्ट्स भी चेक हो जाता है और बच्चों को जो है टेस्ट भी कर लिया जाता है. तो इसीलिए इन क्वेश्चन पे खासा प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है. 2-3 बार खुद से भी बना के देखें. बोर्ड पे बना हुआ छापने में बहुत मजा आता है और इजी भी लगती है चीजें, बट खुद से करने समय फिर पता चलता है कहाँ फंस है. So, please try and practice as much as you can. जो असाइनमेंट बुकलेट है उसके भी सारे क्वेश्चन सब करने हैं. ठीक है. अगर कि सबके पास असाइनमेंट बुकलेट है तो असाइनमेंट 5 का assignment 5 from the triangles वाला thing. So assignment 5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं पहले. So fourth question है ABC is a right angled triangle at B. We have a right angled triangle ABC, right angled at B. If D and E are midpoints of the sides BC and AB, so D and E are midpoints of the sides BC and AB respectively, prove that AD square plus C square, AD square plus C square is equal to 5 times B square. So, prove AD square plus of C square is equal to 5 times DE square. तुम लोग को ये है कि ये जो D और E है मिड पॉइंट्स है, मतलब BD BC के बराबर है और E D के बराबर है. D and E are midpoints. So given D and E are midpoints, angle ABC is 90 degree. प्रूफ करके दिखाओ.
आज कोई सॉल्व करके नहीं बताएगा क्या? क्या बात है, सारे सेल्स हो गए सब? इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। चलो मैं ही बनाता हूँ फिर। देखो एडी स्क्वायर लिखेंगे पहले, एलएचएस एडी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब एडी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर, एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर। और ये जो सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये देखो हम लोगों को डी के टर्म्स में लिखना है, मतलब बी डी और बी को ही रखना है हम लोगों को। तो ए बी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा, इसको रिप्लेस करना। सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी का होल स्क्वायर। ए बी को हम लोग ट्वाइस ऑफ बी लिख सकते हैं प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ये जो बी स्क्वायर तो रहने देंगे, बीसी को हम लोग ट्वाइस ऑफ बी डी लिख सकते हैं। सॉल्व हो गया, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर हो गया। तो क्या हो गया, तो मेरा भी हो गया। 4 ये दोनों को जोड़ो, 5b स्क्वायर प्लस 5bd स्क्वायर, 5 कॉमन ले लो, b स्क्वायर प्लस ऑफ bd स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर d स्क्वायर हो जाएगा, 5 टाइम्स b स्क्वायर। ये प्रूफ करना था। इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, तुम लोग इतना चक्कर खा रहे थे इसमें है? ये तो मैंने आसान क्वेश्चन दिया था भाई, जानबूझ के डिफिकल्ट नहीं दिया। चलो प्रैक्टिस करो खूब सारा, है ना, इसको लिख लो एंड डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। व्हाट डू यू वांट मी टू रिवाइज नेक्स्ट? सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबके आ रहा है ना कोऑर्डिनेट? सर मेरे नहीं आ रहा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा सकते हो सर? कब है तुम्हारा एग्जाम जस्ट? सर मेरा 15 से स्टार्ट हो रहा है। तुम्हारा कब है वेदांश? सर मेरा मैथ्स का 21st को है। यानी एग्जाम कब से शुरू है? सर 21st ही हो रहा है शुरू। टाइम है तो कोऑर्डिनेट इसके बाद कर लेंगे, पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लेंगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताओ। सर वो सीबीएसई के हिसाब से एपी में ऐसा लिखा हुआ है कि सर जो n की पावर वाले क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। n की पावर वाले नहीं, समेशन वाले क्वेश्चन जो पीछे दिए हुए ना, समेशन वाले क्वेश्चन। सर ऑप्शनल वाले या फिर 5.3 वाले? नहीं 5.3 में लास्ट में जो 3 क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, वर्ड प्रॉब्लम, स्टोरी। हाँ सर बड़े बड़े, हाँ वो वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये लिखो। ओके सर, थैंक यू सर। सर हमारे सिलेबस में एपी तो आ ही नहीं रहा है। भैया तुम दोनों आपस में निपट लो और फिर मुझे बता देना। सर नहीं आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह वो सब आ रहा है। आप you just send me a message after looking at the syllabus or send me the syllabus. ओके सर, I'll do. चलो, Thank you, sir. we'll stop here for the day. Do a lot of practice. खूब सारा असाइनमेंट शीट से खूब करो। असाइनमेंट शीट सबको मिल गया है ना? यस सर।
चलो बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।